We have already learned initial hooks for R and L in the previous lesson. Now we are going to learn alternate forms for R and L in this lesson. So, what are alternate forms? The strokes downward R and S are not hooked for addition of R or L in the previous lesson. They are, however, now we are going to hook them to provide alternate forms for fur, var, fal, val, tar, dhar, and for fur. Earlier we learned fur as like this fur. Fur. Now the alternate form of it is mirror image of FR is this is FR. This is alternate form of FR. In the same way, var and var. ठीक है, वर वर alternate form है, ठीक है, and तर तर, ठीक है. The same way, thar and thar and fal and fal and val val alternate forms. Val val THR 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 A fal. This is alternate form of fal, like that. So the mirror image of earlier initial hooks we used for fur, var, tar, dhar, fal and val are called alternate forms. The first of each form is a left curve, क्योंकि हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं. This one is a right one. So left curve and right curve. Left curve, right curve, left curve, right curve, left curve, right curve, left curve, right curve, left curve and right curve, left curve, right. वल वल वल, फर ऐसा, ठीक है. And there is only one form for thal, that is जो पहले हमने सीखा था तल, THL का THL का थोड़ा लाइटली लिख लेना इसको, थल. दिस इज थल. दिस इज ओनली वन फॉर्म, इसका अल्टरनेट फॉर्म नहीं है. When standing alone, left curves for fur, var, tar are used only when a vowel precedes, and the right curves are used if a vowel follows and does not precede, like in fray, fray. सो लेफ्ट हमने जब प्रेसिड हुआ था तब लेफ्ट वाला फॉर्म फर हमने यूज किया. इधर ये राइट वाला, क्योंकि इधर वोवेल फॉलो कर रहा है एंड नो वोवेल इज प्रेसिडिंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द अल्टरनेट फॉर्म, ठीक है. द सेम वे ईथर, ईथर, इधर 3, ether and 3.
थोड़ा इधर मोटा सा आ रहा है, आप समझ लेना, ये TH ओनली, ठीक है। इधर एंड इधर ये वोवेल फॉलो कर रहा है, प्रिसीड कर रहा है, इसलिए हम नॉर्मल थर लिखा था। इधर फॉलो कर रहा है और नो वोवेल इज प्रिसीडिंग, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ थर। In addition to the following मतलब earlier conditions already stated, हम एक स्ट्रोक को यूज करेंगे, मतलब फर को दूसरे के साथ के उस समय यूज करेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट आउटलाइन बनाने के लिए हमें कन्वीनियंस देता है। वो कौन सा? ये फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे, वर्चू, बट इधर हम ये वाला अल्टरनेट फॉर्म उस समय यूज कर रहा है, फ्रेम, फ्रेम, वर्बल, वर्चू, फ्राइडे, ओके, एंड थर्मल, क्योंकि ये कन्वीनियंस ज़्यादा इधर प्ले कर रहा है। लेदर, इधर भी सेम है, कन्वीनियंस प्ले कर रहा है। कॉफर, के बाद नॉर्मली फर को ऐसा अल्टरनेट फॉर्म ही यूज करते हैं हम। कॉफर, गे के बाद भी ऐसा है। कवर, like that, and lover, हमने ये देख सकता है जो लेफ्ट का उस स्ट्रोक्स के साथ बेटर हम लिख सकते हैं, जो लिखता है जो लेफ्ट साइड हम लिखता है, एंड राइट वाला जो राइट साइड लिखता है। सो दिस इज द जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ सर आइजैक पिटमैन सर, and you can observe while writing the outlines also. फल एंड वल जो अल्टरनेट फॉर्म्स हम यूज करते हैं आफ्टर के, जी एंड एन, एन, लाइक इन कैविल, कैविल, and navel, navel, navel हमने सीखा था ना, पहले पूरा स्ट्रोक लिखता था लेकिन अभी पूरा लिख रहा है। सेम वे राइफिल, एंड वीविल, and in all other areas and in the words we use normally left curves, like in flow, flow, flicker, joyful, joyful, and बढ़िया सा और frequently occurring word arrival, like that. So K, N and G के बाद हम alternate strokes यूज कर रहे हैं। अप स्ट्रोक्स है ना, ये वी भी अप स्ट्रोक है, आर भी अप स्ट्रोक है, उसके बाद उसमें हमने अल्टरनेट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं, लाइक इन कैविल, नेवल, राइफिल,
and we will. And in all other way, in all other words, we normally use left curve. That is flow, flicker, joyful, and arrival. Arrival. Okay. Intervening vowels. To obtain a briefer or easier outline, an initially hooked form may be used even when a vowel separates L and R. L and R को एक वोवेल सेपरेट करने के बाद भी हमने उसको यूज करता है. उसको कैसा हम रिप्रेजेंट करते हैं? बाय प्लेसिंग एन इंटरवीनिंग डॉट वोवेल between a stroke and an initial hook may be indicated by writing a small circle instead of a dot. समझ में आया? सपोज हम पर लिख रहा है, पर, चर, चलो लेट अस treat as बर, बर एंड चल. इसमें सपोज हम by applying the same principle of barley, बी का और आर का बीच में एक आ का वोवेल है. टू रिप्रेजेंट दैट थिंग, बी एंड ए का बीच में हम ऐसा वोवेल पढ़ने के लिए बगल में राइट हैंड साइड में हम छोटा सा सर्कल रखता है. बी आ आर, बारली, बारली, ऐसा पढ़ेंगे हम. ठीक है. और चैलेंज, ये चाल, एन जी, चैलेंज. चैलेंज को कैसा पढ़ोगे? इधर रखोगे आप सर्कल, क्योंकि ये एल के बाद ए आ रहा है, ये ए का वोवेल इधर रखेंगे. चैलेंज, लाइट डॉट है वो, उसमें गलती से मत आना, उसका उस पर आ रहा. चैलेंज अबव द लाइन. ठीक है. ये बारली अबव द लाइन. एंड नरेट, नर, एन और आर का बीच में एक छोटा सा वोवेल आ रहा है आ का. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका पहले एक छोटा सा सर्कल रखेंगे. एन आ आर के बाद ये आ रहा है, नरेट. आर के बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि एन के बाद आर का साउंड आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में इंटरवीनिंग वोवेल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय प्लेसिंग ए स्मॉल सर्कल इन द फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन. नरेट एंड शार्पली, ली, शार्पली. इश एंड आर का बीच में आ का वोवेल आ रहा है. टू प्लेस दैट थिंग हम छोटा सा सर्कल पे कर रहा है, शार्प ली. एल के बाद एक छोटा सा ई का वोवेल आ रहा है, उसको हम थर्ड प्लेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डॉट. ठीक है. So to write a briefer outline, the initially hooked bar is used even though the word बी एंड आर का बीच में ए का वोवेल आने के बाद भी हम वो आ का वोवेल को बाय प्लेसिंग ए स्मॉल सर्कल आफ्टर बर हम रिप्रेजेंट करते हुए ये बारली का स्ट्रोक लिख रहा है. सेम वे नरेट में भी ऐसा है. नर, एन एंड आर का बीच में आ का वोवेल आ रहा है, टू रिप्रेजेंट दैट थिंग ओनली आल्सो इन द फर्स्ट प्लेस. सी ऑल द इंटरवीनिंग वोवेल्स आर इन द फर्स्ट प्लेस ओनली. चैलेंज, barley, narrate, sharply, all these are
फर्स्ट प्लेस ओनली, ठीक है। जो बीच में आता है, मतलब सेकंड प्लेस में आता है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या थर्ड प्लेस में आता है। सो द इंटरवीनिंग डैश वोवेल or a diphthong may be indicated by striking the sign through the stroke consonant, like in Burma. Burma. आ, ये सेकंड प्लेस में आ का वोवेल आ रहा है, डैश, लाइट डैश, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The main purpose of writing bar also, even though there is a intervening vowel between B and R, is to get a shorter outline. Like in Burma, coarsely, SL, coarsely, ये भी ऐसा है, light dash, coarsely, and coarsely, and nullify, सेकंड प्लेस है ना, इसको आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर लिख सकता है। दीज आर ऑल सेकंड प्लेस वोवेल्स, सो ऑल द स्ट्रोक्स either end at on the line, either end on the line, or can be placed slightly over the above the line, so that the second consonant which is coming like this in nullify, like the nullify, F will end in on the line. एंड लेक्चर जो लास्ट में आ रहा है, ये अभी सारा ये सेकंड प्लेस है, आप समझने वाली बात है, ये सेकंड प्लेस लेक्चर। लेक्चर में LKTR, टी और यू के बीच में है ये, लेकिन हम टर लिख रहा है, वो टर लिखते वक्त हम कैसे लिख रहे हैं, ये यू डिप्थांग को टी के नीचे दोनों क्रॉस करते हुए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेक्चर। समझ में आया? सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस है, यू डिप्थांग इज थर्ड प्लेस, आ लाइट डैश, आ लाइट डैश, आ लाइट डैश, these three are second place and this one is third place. सपोज हम सर्किल भी नहीं लिख सकता है टू सेपरेट the consonants L and R with the stroke, or through the stroke हम लाइट डैश भी नहीं लिख पा रहे हैं, तब हम कैसा लिखेंगे फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस वोवेल्स को? ये बोल रहा है by placing a small dash either at the beginning or placing the diphthong below the stroke, like in words corner, 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 and tolerable, 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 ठीक है। एंड कैप्चर्स, कैप्चर्स, इधर सर्कुलस आ रहा है, इसलिए यू डिप्थांग हम थ्रू दी स्ट्रोक नहीं लिख पा रहा है, इसलिए हम इसका नीचे यू डिप्थांग प्लेस करेंगे। फर्स्ट प्लेस है ये, वो स्ट्रोक तो फर्स्ट प्लेस है, बोध लाइन लिखना है, टॉलरेबल ए भी है बोध लाइन है, ए भी है बोध लाइन, लेकिन डिप्थांग आ रहा है थर्ड प्लेस में, इसलिए हम इधर सर्किलस के साथ हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हम इसका नीचे रख रहे हैं, ठीक है। कॉर्नर, टॉलरेबल एंड कैप्चर्स, ओके। But in words like perceive, telegraphy, mercury, nervously, the hooked form
actually sufficiently represents the first syllable of the word. Perceivable में per is the first syllable of the word per. So वो represent कर रहा है, इसलिए हम उसको neither कट करेंगे ना सर्किल प्लेस करेंगे ना थ्रू द लाइन, मतलब वो डिप्थोंग नहीं रखेंगे. लेट अस सी कैसा है. परसीव, परसीव तो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हम कोई वोवेल प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं. लाइक टेलीग्राफी, टेलीग्राफी, टेलीग्राफी एंड mercury, mercury, mercury. ओके. और nervously, nervously, nervously. ओके. ये फर्स्ट सिलेबल, वर्ड का फर्स्ट सिलेबल जो नर है उसको ये नर नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है, मर नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है, टेल नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए हम उसको इधर बाय प्लेसिंग ए डैश और सर्किल या थ्रू द लाइन ना काटते हुए हम उसको वैसा ही यूज़ कर रहा है. पर को परसीव जैसा यूज कर रहा है. बट विद द एक्सेप्शन लाइक इन नर्स. देखो नर्स में नर का साउंड आ रहा है लेकिन बीच में आ का डिप्थोंग आ रहा है, इसलिए हम इसको नर एस, नर्स बीच में काटता है. नर्स में टर्क, टर के आ का टी और आर का बीच में आ रहा है. सो टर्क भी हम बाय स्ट्राइकिंग थ्रू दी स्ट्रोक हम उसको भी ऐसा इन सेम वे. डार्क, डर के, डर के लिए ये तो सही है लेकिन आ चाहिए. डार्क, आप समझने वाली बात है. डर पर, ये परसीव में पर इस पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर, लेकिन ये डार्क में ये डर डी आर साउंड ओनली है, लेकिन ये डी आर का बीच में ये कहाँ आ गया था, इसलिए हम डार्क में एक स्मॉल सर्किल आफ्टर डर प्लेस करते हुए अबव द लाइन लिख रहा है. एंड a few other words, the initially hooked strokes are not used to monosyllables where the consonants are separated by a vowel. Like ये पर तो रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन हम जब पेर लिखना है दोनों का बीच में वोवेल है, इसलिए हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे. पल को पल लिख रहा है, थोड़ा लाइटली लिखना होगा पल, लेकिन पेल, क्योंकि जो बीच में पी एंड एल का बीच में जो भी है वोवेल ये स्ट्रांग वोवेल है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा. पेल, पेर, टर इज अलग है, ये टेर अलग है. आप समझने वाली बात है. ए का वोवेल आ रहा है और टोर, टी डाउनवर्ड आर, टोर, ओ का वोवेल आ रहा है टी एंड आर के बीच में, इसलिए हम पूरा स्ट्रोक लिखना ही पड़ेगा. प्रिंसिपल क्या है, जब दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग वो आ रहा है, मतलब साउंड वोवेल साउंड आ रहा है, तब हम पूरा स्ट्रोक लिखेंगे. इस चैप्टर के अंत में उन्होंने कुछ ग्रामर्स दिया था, आप समझ रहे होगे. ये कुछ समटाइम्स ही राइट्स ग्रामर्स GRAMMALOGS and sometimes GRAMMALOGUES.
both spellings are right, both the spellings are right, लेकिन पुराना वर्शन वाले में GRAMMALOGS दिया हुआ है पुराना ओल्ड टेक्स्ट में, जो न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक में ग्रामलाक्स में GUES दिया था, nothing else. And now coming to the Gramlax he has given. If pal is written through the line, pal is written through the line, these people. If bul is written through the line, these believe. Yeah, believe. Yeah, believed. Believe. Yeah, believed. Okay. Or if tell is written on the line, it represents tell. If tell is written through the line, it represents till. And next, if dull is written through the line on the line, dull. Deliver. Deliver. Delivery. Deliver, delivered, delivery. तीनों के लिए एक ही ग्राम लाग है. Largely, if jal is written above the line, largely, हमने क्योंकि जे above the line हमने सीखा था as large, उसी को एक L hook लगा दिया था उन्होंने, so he is saying it as largely. And K and L, kal above the line, call. And K and L on the line, equal or equally. And were above the line, over. And were through the line, however. However. And if well is written, if well is written above the line, it represents valuation. Valuation. It represents valuation. And thereafter he has given exercise number 43, 44. Some words he has given. So over, offer, offering, ever, ever, ether, either, fry, fro, like that he has given so many words. You have to practice each word 3 lines. On the first day, 1 line, second day, second line, third day, 1 line. And thereafter he has given exercise number 45 and 46. Passages are there. You need to copy the English version into shorthand, and a shorthand version of the passage you have to read it first and thereafter transcribe it. जो आपने transcribe किया था, compare it with the key and again try to write it down in shorthand. So the lesson is over, and we will again meet in another video with a new lesson. Good day. Important note: don't try to remember the strokes without practicing. Practice, practice, and practice. There is no other way to learn and master stenography.